A very, very good afternoon to all of you. Today we are going to discuss about a very important guideline which was passed by SEBI so as to protect the interest of the investors. है ना? इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कि कैसे उनके हितों की रक्षा की जाए, उसको ध्यान में रखते हुए सेबी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन पास की थी. एंड द नेम ऑफ दिस गाइडलाइन इज सेबी डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज गाइडलाइंस 2003. So these guidelines are directly concerned with delisting of securities, but they were passed by SEBI so as to protect the interest of the investors. How? Because all the listed securities which are listed over the stock markets, basically large number of investors have make investments in those kind of securities. Listed security जो है उसमें आखिर पैसा किसका लगा है? इन्वेस्टर्स का. But suppose either due to any compulsory reason or due to any voluntary reason, if the company is deciding or the company has already decided to delist its securities, then what about the large number of investors? कंपनी तो डिलिस्ट करना चाहती है, बट व्हाट अबाउट द इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड देयर वैल्यूएबल मनी इन दोस काइंड ऑफ सिक्योरिटीज? तो उनका क्या होगा? Because the investors have invested their money in those kind of securities, but now the company is going to delist those kind of securities. Then what about the investor? How to protect the interest of the investors? So keeping all these things in mind, SEBI has passed one very important regulation, and that is SEBI delisting of securities regulations or guidelines 2003. ठीक है, SEBI delisting of securities guidelines 2003. Now, before starting this topic, let me ask certain questions from all of you. What do you understand by delisting of securities? इसका मतलब समझते क्या हो? What is the meaning of delisting of securities? कोई भी बताओ कि what do you understand by delisting of securities? किसी को कोई आइडिया है व्हाट इज डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज? Sir, I think after delisting the company or any securities are not able to trade it out. अच्छा, आफ्टर डीलिस्टिंग सिक्योरिटीज आर नॉट एबल टू ट्रेड इट आउट. अच्छा ठीक है, देखो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज में मैंने क्या बताया था? लिस्टिंग में मैंने क्या बताया था कि लिस्टिंग सिंपली मींस और लिस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मल एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, है ना? तो लिस्टिंग क्या होती है? फॉर्मल एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस. In the same manner, what is delisting of securities? Delisting of securities is basically a process by which the listed securities or the securities of listed companies, they are removed from the trading platform of stock markets on permanent basis. ठीक है, डीलिस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लिस्टेड कंपनी के सिक्योरिटीज को किसी स्टॉक मार्केट से परमानेंट बेसिस पे उनका नाम हटा दिया जाता है. दैट मीन्स नाउ आफ्टर डीलिस्टिंग दे आर नॉट गोइंग टू बी ट्रेडेड ओवर दैट पर्टिकुलर मार्केट और दैट पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज. दे आर नॉट परमिटेड टू ट्रेड ओवर दैट पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, ये ध्यान रखना. लिस्टिंग का मतलब होता है फॉर्मल एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज और डीलिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि रिमूविंग द. ठीक है, इन दोनों को फिर से समझ लो कि one aspect is listing, another aspect is delisting. Listing basically means the formal admission of securities on the trading platform of stock exchanges. Now, what is delisting? Delisting is basically a process whereby the securities are removed. The securities of which company? The securities of listed companies are removed from the trading platform of stock exchanges. So after delisting, those securities are not permitted टू ट्रेड ओवर द स्टॉक एक्सचेंजेस. ठीक है, एक चीज तो ये हो गया बेसिक मीनिंग में डिफरेंस. दूसरा एक चीज और होता है कि बेसिकली लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज आर डन with the help of two kinds of process, that is book building process and fixed method process. Both the methods are applied for the purpose of listing of securities. ठीक है, लिस्टिंग के लिए दोनों मेथड का यूज किया जाता है. वो है फिक्स्ड प्राइस मेथड, दूसरा है बुक बिल्डिंग मेथड. बट
When we talk about delisting of securities, then only one method is applicable, and that is book building method. That means with the help of book building method, you can delist your securities. Otherwise, you are not going to. That means the company is not going to be permitted by SEBI or any authorized body to delist its securities. If a company has decided, then delisting can be done with the help of बुक बिल्डिंग प्रोसेस. ठीक है, उसी के द्वारा वो कर सकता है. एक चीज और इसमें ध्यान रखना कि बेसिकली डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी डन इन टू कंडीशंस. दो कंडीशंस होते हैं जिसमें डीलिस्टिंग की जरूरत हो सकती है या जरूरत आ पड़ती है. व्हाट आर दोस टू कंडीशंस? वन इज कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज. एक होता है कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब कि इसमें कंपनी चाहेगी भी तो नहीं रुकेगा. दैट मीन्स इट इज कंपल्सरी बिकॉज there are large number of actions, or there are large number of steps, or there are large number of violations which the company has made against the prescribed norms of SEBI. SEBI के बताए गए मानकों को या उसके द्वारा बताए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को किसी कंपनी ने नहीं फुलफिल किया होगा. बार बार वार्निंग देने पे, पेनल्टी इंपोज करने के बावजूद जब कंपनियां नहीं फुलफिल करती हैं, देन कंपल्सरी delisting of securities may be done by SEBI of such kind of companies. तो एक तो है कंपल्सरी delisting of securities, दूसरा होता है वॉलंटरी delisting of securities. ठीक है, वॉलंटरी ऐच्छिक. उसमें क्या होता है कि द कंपनी may wish to delist its securities from the stock market. तो यहाँ पे कंडीशन एक और आती है इसमें कि कंपनी तो चाह रही है, लेकिन व्हाट अबाउट सपोज दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ऑफ कंपनी इज लिस्टेड ओवर 5 और मोर देन 5 स्टॉक एक्सचेंज और 1 और मोर देन 1 स्टॉक एक्सचेंज. मान लो एक या एक से ज्यादा स्टॉक मार्केट में डिलिस्टेड है, देन what about other stock market? Suppose the company has decided to delist its securities from one stock market. What about the remaining stock exchanges? क्योंकि एक कंपनी के एक शेयर्स हो सकता है एक से ज्यादा स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो. तो अगर वॉलंटरी कोई कंपनी सोच रही है कि हमें हटाना है, देखो कंपलसरी में क्या होगा, एक से चाहे जितनी भी स्टॉक मार्केट में होंगी सारी की सारी से हट जाएगी. वॉलंटरी सॉरी कंपलसरी में. बट व्हाट अबाउट वॉलंटरी? क्या कंपनी ऐसा डिसाइड कर सकती है किसी एक मार्केट से हट जाए और बाकी मार्केट में सिक्योरिटीज ट्रेड ऑन होती रहे? क्या ऐसा हो सकता है? यस सर, हो सकता है. अच्छा, ऐसा हो सकता है. मतलब अगर मान लो दो या दो से ज्यादा स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और कंपनी सोच रही है कि किसी एक ही से हम अपने को डे लिस्ट कर लें, तो बाकी में क्या वो सिक्योरिटीज कंटिन्यू करेंगे कि नहीं? सो वी हैव टू लुक आफ्टर ऑल दिस पॉइंट्स. That means what is stated under compulsory delisting of securities and what is stated under voluntary delisting of securities. What are the important guidelines which are given by SEBI so as to protect the interest of the investors regarding delisting of securities? ठीक है, यही सारी चीजों को आज हमें देखना है. मैं एक एक करके स्लाइड शेयर करता हूं और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं उसी पे. ये दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. हाँ ठीक है. देखो, सेबी डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज गाइडलाइंस 2003. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज. देखो यहाँ क्या किया गया है. डीलिस्टिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सिक्योरिटीज ऑफ द लिस्टेड कंपनीज फ्रॉम अ स्टॉक एक्सचेंज परमानेंटली. ठीक है, यहाँ पे फिर से ध्यान दो. लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज में क्या आप लोग को मैंने बताया था डेफिनेशन. लिस्टिंग बेसिकली मींस फॉर्मल एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक मार्केट्स. ठीक है, यही चीज बताया गया था कि लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज बेसिकली मींस द फॉर्मल एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक मार्केट. So in the same manner, what is delisting? Delisting is basically the process of removing securities of the listed companies from a stock exchange on permanent basis. ठीक है, तो डिलिस्टिंग बेसिकली उस प्रोसेस को बोला जाता है जिसके तहत किसी लिस्टेड कंपनी के सिक्योरिटीज को स्टॉक मार्केट से रिमूव कर दिया जाता है परमानेंट बेसिस पे. मतलब कि आफ्टर डिलिस्टिंग अब वह सिक्योरिटीज उस कंपनी की उस स्टॉक मार्केट पे दोबारा से काम या ट्रेड नहीं कर पाएगी. वो वहां पे ट्रेड दोबारा नहीं कर पाएगी. व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन रिमूव्ड बाय द स्टॉक मार्केट
ऑन अ परमानेंट बेसिस पे उसको हटा दिया गया है. सो दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सिक्योरिटीज ऑफ द लिस्टेड कंपनीज फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज ऑन परमानेंट बेसिस इज रिगार्डेड एज डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज. नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस. डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज को ही हम लोग पॉपुलरली रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया था कि बेसिकली लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी जब हम लोग करते हैं, जब फॉर्मल एडमिशन करना होता है, एट दैट टाइम देयर आर बेसिकली टू मेथड्स विच आर अवेलेबल बिफोर द कंपनी. दो कंपनियों के पास कितनी मेथड होती है? दो मेथड होती है जिसके द्वारा वो लिस्टिंग कर सकते हैं. लिस्टिंग के लिए प्राइस डिटर्मिनेशन करना होगा ना, तो प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए दो मेथड्स होते हैं. दो मेथड्स क्या क्या होते हैं? एक फिक्स्ड प्राइस मेथड, दूसरा बुक बिल्डिंग मेथड. ठीक है, तो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज में दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड. बट when we talk about delisting of securities, then there is only one method. That means all the companies which have decided to delist their securities from the stock exchanges, they are supposed to adopt only one method. It is compulsory for those companies to adopt only one method, and that method is बुक बिल्डिंग मेथड. ठीक है, और क्योंकि ये डिलिस्टिंग के लिए बुक बिल्डिंग मेथड का यूज किया जा रहा है, सो दोस बुक बिल्डिंग मेथड्स आर बेसिकली नोन एज रिवर्स बुक बिल्डिंग मेथड. क्योंकि यहाँ बुक बिल्डिंग मेथड से हम लोग प्राइस डिस्कवरी मार्केट में एंटर करने के लिए नहीं कर रहे हैं. यहाँ बुक बिल्डिंग मेथड से वह प्राइस डिटरमाइन होगी जिसके द्वारा हम लोग मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे. ठीक है, बाहर हो जाएंगे, यानी डीलिस्ट हो जाएंगे. दैट्स व्हाई दिस बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस. ठीक है, तो ये कोई अलग चीज नहीं है. बुक बिल्डिंग से केवल प्राइस डिटर्मिनेशन होती है. अगर पॉजिटिव सेंस में है, यानी सिक्योरिटीज को एडमिशन के लिए, यानी उनकी लिस्टिंग कराने के लिए, तो बुक बिल्डिंग मेथड कहलाएगा. लेकिन बुक बिल्डिंग मेथड से जब आप प्राइस को डिस्कवर कर रहे हो, किस चीज के लिए? एग्जिट करने के लिए, यानी सिक्योरिटीज को डिलिस्ट करने के लिए प्राइस की डिस्कवरी हो रही है, तो उस बुक बिल्डिंग मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्स बुक बिल्डिंग मेथड. सो delisting of securities is also known as a reverse book building process. Now, these guidelines, that means SEBI delisting securities guidelines 2003, were basically issued with the objective to protect the interest of the investors in the securities market. इस गाइडलाइन को पास करने का मुख्य उद्देश्य क्या था सेबी का? To protect the interest of the investors. Why? Because the securities which are going to be delisted, under those securities large number of investors have invested their valuable money. ये जिन भी सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग की जा रही है, इसमें पैसा किसका लगा है? इन्वेस्टर्स का लगा है ना? लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, दे हैव इन्वेस्टेड देयर वैल्यूएबल मनी इन दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटीज. नाउ these securities are going to be delisted. Then what about the interest of the investors? उनके हितों की रक्षा कौन करेगा? So SEBI has framed necessary guidelines that in what conditions delisting of securities may be done by the company, and such kind of guidelines have been given so as to protect the interest of the investors. ताकि इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा की जाए, भाई उनके साथ कोई अन्याय ना होने पाए. ऐसा नहीं कि कंपनी अपने फायदे के लिए डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज कर दे और मार्केट से गायब हो जाए. तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए सेबी ने क्या किया है? इस गाइडलाइन को पास किया है. ठीक है, नाउ दिस गाइडलाइन शैल बी एप्लीकेबल टू डीलिस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. इसी की सहायता से डीलिस्टिंग की जा सकती है. ठीक है, अब एक स्लाइड और देख लेते हैं. जैसा मैंने बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स. ठीक है, तो उसको आप लोग याद रखना कि बेसिकली डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज मे बी डन विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स, और डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज बेसिकली हैपेंस इन टू सिचुएशंस. दो सिचुएशंस ऐसी आती है जिसमें डीलिस्टिंग हो सकता है. पहला होता है वॉलंटरी. ठीक है, दूसरा होता है कंपलसरी. एक डीलिस्टिंग होती है जो कंपलसरी होती है, मतलब उसमें कंपनी का अब कोई रोल बचा ही नहीं, यानी कंपनी चाहे या ना चाहे, बट डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज गोइंग टू बी हैपन. ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि परमानेंट डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज कब होती है या कंपलसरी डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज कब होती है. ठीक है, कंपलसरी में कंपनी का कोई रोल बचता ही नहीं है, वो डीलिस्टिंग होना ही होना है. बट सेकेंड ऑप्शन इज देयर, दैट इज वॉलंटरी डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज. स्वैच्छिक, वॉलंटरी. तो इसमें वॉलंटरी कौन डिसाइड करता है? इट इज डिसाइडेड बाय कंपनी. सो अंडर वॉलंटरी द कंपनी डिसाइड टू डीलिस्ट इट्स सिक्योरिटीज, बट इन कंपलसरी डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज कंपनी हैज नो ऑप्शन. वहां पे तो होना ही होना है. तो जाहिर सी बात है उसने कुछ वायलेशन किया होगा जिसके तहत क्या किया जाता है?
उसको कंपलसरी। जैसे मान लो स्टूडेंट्स है बीकॉम में ही, ठीक है, तो कोई छोटी मोटी गलती करते हैं उनको सजा दे दी जाती है या उनको पनिशमेंट दे दिया जाता है कि भाई ऐसी गलती मत करो, ठीक है। तो उनके ऊपर पनिशमेंट क्या हो सकता है, कुछ मॉनेटरी उनके ऊपर दंड लगा दिया जाए, कुछ फिजिकल पनिशमेंट दे दिया जाए, या मार्क्स में कुछ कटौती कर दिया जाए, ठीक है। बट मान लो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसी गलती कर दी है कि वो अचम में है, ठीक है। सपोज एनी स्टूडेंट इज इन्वॉल्व इन मर्डर क्राइम एंड नाउ ही इज बिहाइंड द बार्स, ठीक है। नाउ इन दैट केस यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू एक्सपेल हिम। तो वहां पे वो क्या है, कंपलसरी, वहां पे उस स्टूडेंट के पास अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, ठीक है। सो इन द सेम केस when companies they make such kind of mistakes, or they just violate the rules and regulations which were prescribed by SEBI, then SEBI is going to take the necessary step of compulsory delisting of securities. उनको कई बार वार्निंग दी होगी, जरूर वार्निंग दी होगी, उसके बावजूद अगर वो नहीं सुधरते हैं तो वहां पे कंपलसरी डिलिस्टिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। और वॉलंटरी में कंपनी खुद से डिसाइड करती है। नाउ वी विल लुक आफ्टर दैट व्हाट आर द terms and conditions which are directly concerned with voluntary delisting of securities and compulsory delisting of securities. सेबी ने क्या क्या कहा है, सेबी की गाइडलाइन क्या है कि वॉलंटरी अगर कोई कंपनी करना चाहती है डिलिस्टिंग तो वो कैसे कैसे कर सकती है, कौन कौन से स्टेप्स उसको लेने होंगे, ठीक है। और कंपलसरी किन किन कंडीशंस में हो जाता है। तो ये दोनों मेथड्स को हम लोग देखेंगे कि डिलिस्टिंग के दोनों मेथड्स क्या होते हैं। नाउ फर्स्ट वन, डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज in the case of voluntary or voluntary delisting of securities of a listed company। कोई लिस्टेड कंपनी है यानी उसके सिक्योरिटीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, चाहे वो एक स्टॉक मार्केट में हो चाहे एक से ज्यादा में है, बट फैक्ट क्या है कि लिस्टेड कंपनी है और उसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है, ठीक है। और वह कंपनी वॉलंटरी चाहती है, यानी वो कंपनी चाहती है कि उसकी सिक्योरिटीज डिलिस्ट हो जाए। So what are the terms and conditions for voluntary delisting of securities? Now, a company may delist securities from stock exchange where it is listed. कोई कंपनी जिस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वह डिलिस्ट करा सकती है, उसके पास अधिकार है, वो अपने आप को डिलिस्ट बिल्कुल करा सकती है, ठीक है। उसके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस है, प्रोवाइडेड दैट the securities have been listed for a minimum period of 3 years on any stock market और स्टॉक एक्सचेंज। दैट मीन्स द फर्स्ट कंडीशन इज कि अगर कोई कंपनी चाहती है कि वह किसी स्टॉक मार्केट से अपनी सिक्योरिटीज को, लिस्टेड सिक्योरिटीज को हटा ले यानी डीलिस्ट कर ले, तो पहला क्लॉज क्या कहता है सेबी की गाइडलाइन कि दो सिक्योरिटीज मस्ट हैव बीन लिस्टेड ओवर दैट स्टॉक मार्केट फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। कम से कम 3 साल तक तो लिस्टेड होना चाहिए, ठीक है। यानी 3 साल के अंदर अंदर कोई कंपनी क्या डीलिस्ट करा सकती है, बिल्कुल नहीं करा सकती है, ठीक है। सपोज 1 जनवरी 2021 को किसी कंपनी ने अपने आप को लिस्ट कराया, ठीक है, तो क्या वो 2022 में चाहेगी तो वॉलंटरी डिलिस्टिंग करा लेगी, नहीं करा पाएगी। क्यों? क्योंकि मिनिमम कंपलसरी ईयर्स कितना है डिलिस्टिंग लिस्टिंग के लिए कि कम से कम 3 साल के लिए वो वहां पे लिस्टेड हो, उसके बाद से ही वो अगर वॉलंटरी डिलिस्टिंग करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। तो पहला क्लोज यही है। दूसरा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट an exit opportunity has been given to the investors and the exit price shall be determined by the book building process. That means SEBI has clearly defined it, or SEBI has properly clarified the point that an opportunity must be given to all the investors and they must be given an proper exit price। यानी हर इन्वेस्टर का मतलब जो कंपनी अपनी जिन सिक्योरिटीज को डीलिस्ट कराना चाहती है, उन सिक्योरिटीज में जिन लोगों का पैसा लगा है, उन इन्वेस्टर्स को कंपनी क्या करेगी, एक अपॉर्चुनिटी देगी, एक मौका देगी और उनको एक एग्जिट प्राइस देगी, एक ऐसा प्राइस बताएगी कि आप ये इस दाम पे ये पैसा हमसे ले लो और मार्केट से निकल जाओ या इस सिक्योरिटी से अपने आप को अलग कर लो, ठीक है। तो ये पैसा ले लो, एग्जिट प्राइस हम ये दे रहे हैं और इससे आप लोग इस सिक्योरिटी से आप निकल जाइए। और एग्जिट प्राइस, हु विल डिसाइड द एग्जिट प्राइस? द एग्जिट प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय, और दैट शैल बी डिसाइडेड बाय, दैट मींस इट विल बी डिसाइडेड बाय 100%, इट इज कंफर्म्ड दैट द एग्जिट प्राइस इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस के द्वारा ही एग्जिट प्राइस डिसाइड होनी चाहिए। कंपनी कोई मनमाना रेट नहीं दे देगी कि ये एग्जिट प्राइस है और लेके हटो, नहीं, that particular exit price will be decided by book building process and
the investor must be given a opportunity so that he can accept that exit price and exit from the market. ठीक है, तो सेबी ने इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए बहुत ही बड़ा कदम ये लिया है कि एग्जिट प्राइस कंपनियों को देना होगा। जैसे 3 साल लिस्टिंग हो गई है, उसके बाद आप अगर वॉलंटरी डिलिस्टिंग करना चाहते हो तो करो, लेकिन इसके लिए मैंडेटरी क्या है कि आपको हर एक एक उसको मौका देना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि एग्जिट अपॉर्चुनिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द इन्वेस्टर। जो भी उस सिक्योरिटी में जिन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा है उसको आपको एक एग्जिट प्राइस देना होगा। ठीक है, और एग्जिट प्राइस विल नॉट बी डिसाइडेड बाय द कंपनी, एग्जिट प्राइस विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। हम लोग जानते हैं कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या तो पूरे तरीके होते हैं। Right from the beginning, a merchant banker has to be appointed. Merchant banker will draft the prospectus. Merchant banker will invite the applications. Merchant banker will display the final prices at the end of each day. The offer shall be varied for a minimum period of 3 days. कम से कम 3 दिन तक the prices quoted by or the prices decided by the supply and demand forces must be displayed by the merchant banker at the end of each day, है ना। every investor must be given an opportunity to revise his quotations. So large number of steps are taken under book building process. So in the same manner the exit price will be decided and investor will be given an opportunity to accept that exit price. अगर investors को exit price पसंद है तो वो प्राइस ले और मार्केट से निकल जाए, अदरवाइज नहीं पसंद है तो ठीक है, आगे की कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, तो ये दूसरा ये दिया गया है गाइडलाइन कि डीलिस्टिंग मनमाने ढंग से नहीं होगा। आपको बुक बिल्डिंग प्रोसेस के द्वारा एग्जिट प्राइस जरूर पता लगाना होगा और हर इन्वेस्टर को जिन्होंने आपकी सिक्योरिटी में पैसा लगाया है एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको उनको देना होगा। Next one, an exit opportunity need not be given in cases where securities continue to be listed in a stock exchange having nationwide trading terminal. ये बात ये कर रहा है कि मान लो, ये एक्सेप्शन एक दे रहा है कि सपोज दो सिक्योरिटीज हैव बीन लिस्टेड ओवर 3 स्टॉक एक्सचेंजेस, सपोज। ठीक है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि 3 में है या मान लो 2 में है, मतलब एक से ज्यादा में है। ठीक है, वो चाहे 2 में हो, चाहे 3 में हो, चाहे 4 में हो, जो भी है। ठीक है, सपोज दो स्टॉक एक्सचेंजेस आर, फर्स्ट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, सेकंड वन इज बीएससी, थर्ड वन इज अहमदाबाद, फोर्थ वन इज से कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। और कंपनी सोच रही है कि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज से हम अपने आप को डिलिस्ट करेंगे, अब हम यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शन ये यहाँ पे क्या दे रहा है कि an exit opportunity need not be given in the cases where securities continue to be listed in a stock exchange having nationwide trading terminal। तो ये कह रहा है कि अगर कोलकाता से ही केवल कंपनी अगर बाहर जाना चाहती है तो चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यही कंपनी एनएससी और बीएससी में ट्रेड कर रही है, या एनएससी और बीएससी में से किसी एक में भी अगर ट्रेड कर रही है तो भी वो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, नेशन वाइड टर्मिनल्स इनके पास है। इनकी टर्मिनल्स, द टर्मिनल्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड और दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, तो कोलकाता से अगर बाहर भी चला जाएगा तो उसके इन्वेस्टर के पास क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, ही विल बी शिफ्टेड टू दोस टर्मिनल्स विच आर हैविंग नेशन वाइड टर्मिनल्स। वैसे स्टॉक मार्केट में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा जो कि नेशनल टर्मिनल्स जिनके पास हैं। तो उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत ही नहीं है, उनको क्या करना है, शिफ्ट कर देना है दूसरे मार्केट पे। शिफ्टिंग क्या पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वही कंपनी है और उसी की वही सिक्योरिटी है जिसका वो इन्वेस्टर था। ठीक है, कोलकाता में पहले स्टॉक मार्केट उसमें पैसा लगाया था, अब वो क्या हो जाएगा, नेशन वाइड टर्मिनल में चला जाएगा। सो दीज 3 कंडीशंस हैव बीन लेट डाउन बाय सेबी so as to protect the interest of the investors in the case of voluntary delisting of securities। ये फर्स्ट 2 स्लाइड से किसी को कोई दिक्कत है या मुझसे पूछना हो कुछ तो पूछ ले। फर्स्ट 2 स्लाइड में किसी को भी कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ ले। अच्छा, चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में असर पड़ता होगा क्या? आवाज नहीं क्लियर आई।
हाँ हाँ, वो तो मैं समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हारी आवाज पूरी तरीके से नहीं समझ में आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, डीलिस्टिंग की वजह से क्या इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट या इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस में फर्क कुछ पड़ेगा क्या? डी लिस्टिंग की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखो, मैंने तुम लोग को क्लास में ही बताया था ये चीज, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस, जब कॉलेज में क्लासेस चलती थी, उस समय ही बताया था, फिर से समझ लो। स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती है, ठीक है, विच आर कंसिडर्ड टू बी हाईली सेंसिटिव, all the matters which are directly concerned with stock market, or all those matters which are not associated with the stock market at all. कोई ऐसा मामला जो स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट संबंधित है वो, या कोई ऐसा मामला जो स्टॉक मार्केट से दूर दूर तक संबंधित नहीं है, both are going to affect the functioning of stock exchanges. That's why they are regarded as highly sensitive markets. ये ऐसे मार्केट्स होते हैं जो हाईली सेंसिटिव होते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई ऐसी चीज है जिसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है स्टॉक मार्केट पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आप लोग को इस चीज को समझा दूं तो थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, जैसे मैंने यही एग्जाम्पल क्लास में भी समझाया था, ठीक है, दोबारा से सुन लो। कि सपोज आज ही के डेट में हमें अभी पता चलता है कि सपोज यूएसए इज गोइंग टू अटैक ईरान। यूएसए नाम का या अमेरिका नाम का एक देश है जो आज की डेट में कहां अटैक करने वाला है, ईरान पे अटैक करने वाला है। ये न्यूज मार्केट में फैल जाती है कि अमेरिका इज गोइंग टू अटैक ईरान। नाउ टेल मी, इफ अमेरिका इज गोइंग टू अटैक ईरान, देन इंडिया हैज नथिंग टू डू। चलो इंडिया का मान लो कुछ हो सकता है इन्वॉल्वमेंट, भाई देश है, बट व्हाट अबाउट स्टॉक मार्केट्स, व्हाट अबाउट बीएससी और व्हाट अबाउट एनएससी? व्हाट बीएससी हैज टू डू विद अमेरिका एंड ईरान? वो अटैक कर रहा है तो इससे बीएससी और एनएससी को क्या लेना देना है? बट whether the securities, the prices of the securities or the performance of the stock markets, they are going to be affected or not? Yes, 100% they are going to be affected, because we can assume that, or we can simply assume that that particular condition is going to indirectly affect the stock market. बिल्कुल हम लोग ये मान सकते हैं कि वो स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस, आपका ये सवाल था ना कि क्या डिलिस्टिंग का असर पड़ेगा? अरे बिल्कुल पड़ेगा। डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द स्टॉक मार्केट। ये तो ऐसा मामला है कि वो जो स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, कैसे पड़ेगा इसको ऐसे समझ लो कि सपोज द कंपनी इज डिलिस्टिंग इट सिक्योरिटीज फ्रॉम स्टॉक मार्केट, तो वहां पे सुनने वाले के दिमाग में क्या जाएगा कि सिंस it might be possible that the stock exchange is not able to handle the securities, or stock exchange is not providing proper platform, or it is not providing good services to the companies. That's why the companies are going for delisting of securities from that particular stock market, है ना? जिस स्टॉक मार्केट से सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग शुरू हो जाती है, तो लोगों में ये भी तो जाएगा कि लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में ही कोई कमी है ना? क्यों? क्योंकि हो सकता है ये कंपनियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती होगी, तो वो डिलिस्टिंग के लिए जा रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स में बी देयर। आप अपने हिसाब से भी कुछ सोच सकते हो कि कंपनियां क्यों छोड़ के जा रही हैं। तो देयर माइट बी अ रीजन। एक हो सकता है कि कंपनी की खुद ही की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो, चलो ठीक है, एक तो ये रीजन हो सकता है, बट दूसरा रीजन ये भी तो हो सकता है कि कंपनी को उस स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस समझ में नहीं आ रहा है, या काम करने का सब तरीका सही नहीं लग रहा है, इसलिए वो दूसरे स्टॉक मार्केट पे जा रही है। सो लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, बट डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज डायरेक्टली कंसर्न विद द स्टॉक मार्केट, तो इसका तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। एक चीज, एक और ये बात तो आपकी समझ में आ गई। अगर इन केस जो एग्जांपल ही आपने दिया कि हमारी पूरी इंडियन कंपनी अगर उन दोनों एरिया में परफॉर्म न करें तभी पड़ेगा। आपकी आवाज, इसकी आवाज जो जिसको सुनाई दे रही है वो जरा मुझे रिप्लाई करे एक बार। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो आपने एग्जांपल दिया यूएस ईरान का, अगर जो कोई भी इंडियन कंपनी इन दोनों एरिया में अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, तब भी बीएससी एनएससी है जो हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, तब भी फर्क पड़ेगा उस सब पे। कोई कंपनी अपने एरिया में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। नहीं, उन दोनों एरिया में, स्पेशली यूएस एंड ईरान जहाँ पे वॉर हो रहा है।
कोई इंडियन कंपनी उन दोनों में जहां पे वॉर हो रहा है वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, परफॉर्म ही नहीं करती है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है वहाँ पे इंडियन कंपनी का, तब भी हाँ, मार्केट देन को। यस, ऑल्सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द इंडियन मार्केट 100%। कैसे, मैं आपको बता दूं। आपको लग रहा होगा कि कैसे भाई, वो सबसे तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे सीधा सीधा एक लिंक समझो। व्हाट अबाउट द FIIs, व्हाट अबाउट द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? दे माइट बी फ्रॉम USA, दे माइट बी फ्रॉम ईरान। हो सकता है कि ईरान का कोई बंदा हमारे मार्केट में पैसा लगाता हो सकता है कि अमेरिका का कोई बंदा हमारे स्टॉक मार्केट्स में पैसा लगाता हो। व्हाट अबाउट दोज इन्वेस्टर्स इन द केस ऑफ वॉर? जैसे ही USA अटैक करेगा, USA वाला अपना पैसा निकाल लेगा। जैसे ही ईरान के ऊपर अटैक होगा, ईरान वाले को डर होगा कि भैया पता नहीं हमारे कब सारे के सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिए जाए ईरानियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? केवल डर से ही वो पैसे निकाल लेगा मार्केट से। जैसे अभी आप लोग एक इस तरीके का एग्जांपल समझो तो आप खुद समझ जाओगे कि सपोज आज ही के डेट में हमें पता चलता है कि देर इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एक अचानक से अभी पता चला कि इंडिया और चाइना में वॉर शुरू हो गया। ठीक है, आप देखोगे, जानते हो क्या रिएक्शन होगा इंडिया में? इंडियंस जितने होंगे सब बैंक अकाउंट से अपने पैसा निकालना शुरू कर देंगे। बैंक से सीधे इंडियंस अपने अकाउंट अकाउंट से पैसा निकालना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि बैंक उनके पैसों को जब्त कर लेगी, बट देर इज ए पॉसिबिलिटी, और देर विल बी अ पॉसिबिलिटी इन द केस ऑफ मोस्ट अर्जेंट स्टेज द गवर्नमेंट माइट पुट अ बैरियर अपॉन विड्रॉल ऑफ मनी। वो वहां पे क्लॉज लगा सकती है कि पैसे को रोक दिया जाए। ठीक है, तो वार कंडीशंस में क्या होता है, लोग लोग कैसा रिएक्शन देंगे ये बिल्कुल क्लियर नहीं रहता है ना? कई लोग जो है अचानक कुछ अंधाधुंध सामान खरीद के घर पे स्टोर करना शुरू करेंगे, कई बैंक के लॉकर्स खाली कर देंगे। सो लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। सो all the things, almost all the things, they are going to affect the stock exchanges. That's why it is regarded as the most sensitive exchanges. Stock exchanges are regarded as highly sensitive. They might be affected from a direct matters, for example delisting of securities, and they might be affected also from a matter which is not concerned with the stock exchanges at all. कोई मैटर जो इससे बिल्कुल लेना देना नहीं है, उससे भी इस पे प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, जी सर, ओके, समझ गया। चलो अब डीलिस्टिंग के अलग, वॉलेंट्री के कुछ और। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर वॉलेंट्री डीलिस्टिंग? अगर किसी कंपनी को वॉलेंट्री डीलिस्टिंग करना ही है तो उसे कौन कौन से स्टेप्स फुलफिल करने होंगे? पहला तो मैंने ये बता दिया कि ये 3 कंडीशंस को कंपनी को देखना होगा, है ना? कि 3 साल से कम ज्यादा लिस्टिंग हो चुका हो, एग्जिट अपॉर्चुनिटी जरूर दी जाए इन्वेस्टर्स को, और एग्जिट अपॉर्चुनिटी की प्राइस बुक बिल्डिंग प्रोसेस से ही डिटरमाइन हो, प्लस अगर नेशन वाइड टर्मिनल है तो डीलिस्टिंग एक अगर एक्सचेंज से हो रहा है तो बाकी एक्सचेंजेस में वो काम कर सकता है, बशर्ते कि बाकी एक्सचेंज नेशन वाइड टर्मिनल होने चाहिए। ठीक है, तो वो उस कंडीशन में कर सकता है। बट व्हाट इज द ऑफिशियल प्रोसीजर ऑफ वॉलंटरी डीलिस्टिंग, वो हम लोग देखते हैं नाउ। एनी प्रोमोटर और एक्वायरर desirous of delisting securities of the company under the provisions of these guidelines shall, है ना? मतलब कि कंपनी का प्रोमोटर, कौन सी कंपनी? वह कंपनी जो डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज चाहती है, वॉलंटरी, उसका इच्छा है कि डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी कर दे, तो उस कंपनी का प्रोमोटर या एक्वायरर, मतलब उस कंपनी को कोई जो एक्वायर कर रहा हो बंदा, है ना? वो कंपनी वॉलंटरी डिलिस्ट करना चाहती है तो हो सकता है किसी को बेचना चाह रही हो, तो जिसको बेच रही है वो एक्वायरर जो भी डिजायरस है डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज का, है ना? उनको इन गाइडलाइंस को फुलफिल करना होगा। किन गाइडलाइंस को? नंबर 1, ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड एट इट्स जनरल मीटिंग। यानी जिस कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज की डिलिस्टिंग करानी है, सबसे पहला स्टेप उसे क्या करना होगा? उस कंपनी के प्रोमोटर को एक जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन से इस प्रपोजल को पास करना होगा, है ना? जनरल मीटिंग में कंपनी जनरल मीटिंग कॉल करेगी और उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी, मतलब कि उस रिजोल्यूशन को कम से कम 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाना चाहिए। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनको इनवाइट किया जाएगा जनरल मीटिंग में, और वहां पे उस प्रपोजल को रखा जाएगा कि हम लोग डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज करना चाहते हैं।
ठीक है, और शेयर होल्डर्स अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ उस चीज को अप्रूव कर देते हैं, देन इट विल बी मूव्ड फर्दर ऑन। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज ये यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि एग्जिट प्राइस दिया गया है शेयर होल्डर्स को, है ना, एक एग्जिट प्राइस दिया गया है। एग्जिट प्राइस कैसे बनाया गया है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। तो मैक्सिमम शेयर होल्डर्स हो सकता है तैयार हो जाए, भाई उनको उनका पैसा मिल ही जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस कंडीशन में स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाए, बट पास कराना बहुत ही जरूरी है। इट इज मैंडेटरी। क्यों? बिकॉज सेबी हैज गिवन गाइडलाइंस। नंबर 2, मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस गाइडलाइंस। जैसा इस गाइडलाइन में कहा गया है, पब्लिक अनाउंसमेंट भी करना होगा। पब्लिक अनाउंसमेंट मीन्स a notification must have been given by the company in the general or public domain, or a circular must have been given by the company in the public domain, or a advertisement regarding the same must have been given by the company in the public domain। इस टाइप से कुछ पब्लिक डोमेन में कंपनी को एक इंफॉर्मेशन फ्लोट करना होगा कि वी आर गोइंग टू डिलिस्ट आवर सिक्योरिटीज, ताकि लोगों को पता चल सके। ठीक है, ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट, बिफोर मेकिंग द पब्लिक अनाउंसमेंट, the promoter shall appoint a merchant banker registered with the board who is not an associate of the board। यानी पब्लिक अनाउंसमेंट करने से पहले कंपनी को क्या करना होगा? कुछ कंपनी को जो डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज कर रही है उसको एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना होगा। ये मर्चेंट बैंकर कौन होगा? रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर विद सेबी। रजिस्ट्रेशन उसका मैंडेटरी है, वैसा ही मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया जाएगा। और यह भी ध्यान रखा जाएगा कि दैट मर्चेंट बैंकर हैज नो रिलेशन विद द कंपनी और विद द बोर्ड। कंपनी के बोर्ड के साथ इस मर्चेंट बैंकर का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में किसी प्रकार का रिलेशन, या वो एसोसिएटेड नहीं है, यानी वो जुड़ा हुआ कंपनी से नहीं है। वैसे मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया जाएगा और एग्जिट प्राइस वगैरह डिटरमाइन किया जाएगा, प्लस जो ये पब्लिक अनाउंसमेंट है उसके बाद ही किया जाएगा। ठीक है, तो पहले मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करके बुक बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा, एग्जिट प्राइस और ये पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट, मेक एन एप्लीकेशन टू द delisting exchange in the specified form and should attach a copy of the special resolution passed। That means the company is supposed to give an application form to the concerned stock market, clearly mentioning that the company wants to delist its securities from the exchange। Now the application form must be given by the company in the specified form, and the special resolution which was passed by the company in the board's meeting, that must be attached with this particular application letter। ठीक है, कंपनी को स्पेसिफाइड फॉर्म में, मतलब डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज का स्पेसिफाइड फॉर्म है। ठीक है, सेबी के द्वारा बनाया गया है या स्टॉक मार्केट्स के द्वारा स्पेशल फॉर्म बनाए जाते हैं। उसी फॉर्म्स में कंपनी को सारी चीजों को डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन लिखना होगा कि हम डीलिस्ट करना चाहते हैं आपकी स्टॉक मार्केट से, और इसके लिए हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया है जिसकी एक कॉपी इसके साथ अटैच है। ठीक है, तो स्पेशल फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी को लगाते हुए और स्टॉक मार्केट को दे देना होगा कि हम आपके यहाँ से डिलिस्टिंग करना चाहते हैं। तो ये प्रोसीजर भी कंपनी को करना होगा। याद रखना, एप्लीकेशन फॉर्म किसी सादे पन्ने पे नहीं लिखना होता है, वो स्पेसिफाइड फॉर्म है। दैट मीन्स these forms have been specified by the concerned stock exchange or SEBI, and these forms are directly related with delisting of securities। ठीक है, उसी से संबंधित ये फॉर्म होता है और उसी को भरना होगा। एंड लास्ट वन, comply with other additional conditions as may be specified by the concerned stock exchange। अगर स्टॉक मार्केट कुछ और कंडीशंस को उसने पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है कि अगर कोई कंपनी डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज कर रही है तो उसको ये चीज भी करना होगा। सपोज अगर स्टॉक मार्केट कुछ एडिशनल चीज चाहता है कंपनी से कि आप ये चीजों को भी फुलफिल करिए, देन इट इज कंपल्सरी फॉर द कंपनी टू फुलफिल ऑल दोस प्रोविजंस। ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट कुछ एडिशनल चीजें कहता है कि आप ये भी करिए तभी हम डीलिस्टिंग करेंगे, तो कंपनी के लिए मैंडेटरी होगा उसे वो सारी की सारी चीजों को कंप्लाई करना होगा। जो भी कंडीशन स्टॉक मार्केट लगाता है तो उन कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। ठीक है, जैसे क्या क्या कंडीशन स्टॉक मार्केट लगा सकता है?
फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट ये कहेगा कि पहले सारे के सारे जितने इन्वेस्टर्स हैं उनको आप एग्जिट प्राइस दे दीजिए, एग्जिट प्राइस देंगे तो ही हम डिलिस्टिंग के लिए परमिट करेंगे। ठीक है, अगर ये क्लॉज लगाता है देन इट विल बी कंपल्सरी फॉर द कंपनी टू गिव प्रॉपर एग्जिट प्राइस टू ऑल दी कंसर्न इन्वेस्टर्स, कि सबको एग्जिट प्राइस दे और पहले हटाए, उसके बाद ही मार्केट से आपको डिलिस्टिंग के लिए परमिशन मिलेगा। सो ऑल दिस process have to be done by the company if they are willing to delist their securities on voluntary terms। ठीक है, तो इसके लिए ये प्रोसीजर है। इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ ले। नो सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट। Now, payment of consideration. That means how the company is going to make payments to the investors. Why? Because SEBI has given this guideline to protect the interest of the investors. इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए तो है। तो इन्वेस्टर्स को कंपनी पैसा कैसे रिफंड करेगी? अब उसके लिए क्यों? क्योंकि लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज में भी था कि कंपनी पैसा कैसे लेगी। अब यहाँ डीलिस्टिंग में क्या है कि हाउ द पेमेंट्स आर टू बी डन बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स, कैसे पैसा देगी। देखो, द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी पेड इन कैश बाय द प्रोमोटर टू द एक्वायरर। जो भी एक्वायरर है, मतलब जो कंपनीज को नए तरीके से ले रहा है, ठीक है, अगर डीलिस्टिंग करने वाला बंदा मान लो अपनी कंपनीज के शेयर्स को पूरी तरीके से बेच दे रहा है, तो एक्वायरर अगर वो स्टॉक मार्केट है तो या कोई पर्सन है तो हाउ द पेमेंट इज गोइंग टू बी गिवन बाय द कंपनी टू दैट पर्टिकुलर एक्वायरर, दैट कंसिडरेशन इज गोइंग टू बी पेड इन कैश फॉर्म ओनली। यहाँ पे कैश के रूप में देना है। मुझे आप लोग एक चीज ये बताइए कि लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी में जब कंपनियों को लिस्ट कराना होता है, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम whether payments can be received in cash form or not? No sir। No, है ना। वहां पे लिस्टिंग एग्रीमेंट में क्या दे रखा है? सेबी की गाइडलाइन क्या है कि द कंपनी इज नॉट सपोज टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ कैश। कैश बिल्कुल नहीं ले सकती है। किस चीज को लेगी? ऑल अदर थिंग्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड और एंड एक्सेप्टेड बाय बैंक्स। बैंक के द्वारा एक्सेप्ट किया जाने वाला कैश को छोड़ के बाकी सारे माध्यम, जैसे आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, क्या नाम है, ड्राफ्ट, है ना, ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर्स, ये सारी की सारी चीजें क्या है वो एक्सेप्ट कर सकती है कैश को छोड़ के। किसमें? लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज में। बट एट द टाइम ऑफ डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज द कंपनी इज सपोज टू मेक पेमेंट्स टू ऑल अदर एक्वायरर्स इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली। केवल आपको कैश में ही देना है, चेक और ये सब चीजें नहीं देनी है। ठीक है, कैश के रूप में ही सबको पैसा वापस करना है। नाउ नेक्स्ट, डीलिस्टिंग ऑफ वन और ऑल सिक्योरिटीज। एक या एक से ज्यादा सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग कैसे की जाएगी? नाउ अ कंपनी कैन, द कंपनी में डीलिस्ट वन और ऑल ऑफ इट्स क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। यानी कोई कंपनी एक या एक से ज्यादा सिक्योरिटीज को क्या कर सकती है? डीलिस्ट कर सकती है। जैसे कंपनी की मान लो एक या एक से ज्यादा सिक्योरिटी अगर किसी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, ठीक है, या एक से एक ज्यादा स्टॉक मार्केट्स पे भी लिस्टेड है, यानी कंपनी की एक से ज्यादा सिक्योरिटीज भी है और वो एक से ज्यादा सिक्योरिटीज एक से ज्यादा स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड भी है, तो दोनों केस में कंपनी क्या कर सकती है? अपनी सारी की सारी सिक्योरिटीज को डिलिस्ट कर सकती है। ठीक है, नाउ इफ द इक्विटी आर डिलिस्टेड the fixed income security may continue to remain listed on stock exchange। मान लो एक कंपनी है कि सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी है और उसका एक डिवेंचर भी है और एक इक्विटी भी है और दोनों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। दैट मीन्स द डिवेंचर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एज वेल एज द इक्विटी शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज बोथ आर लिस्टेड ओवर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बट द कंपनी इज विलिंग टू डिलिस्ट इट्स इक्विटीज। अब कंपनी ने डिसाइड किया हम इक्विटी को डिलिस्ट करेंगे, तो व्हाट अबाउट द डेप्ट, व्हाट अबाउट द डिवेंचर? तो सीधा गाइडलाइन क्या कह रहा है कि इट मे कंटिन्यू टू रिमेन लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट, ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अगर किसी एक सिक्योरिटी को डिलिस्ट किया जा रहा है तो केवल वही सिक्योरिटीज, यानी उस नेचर की जितनी भी सिक्योरिटीज रहेंगी वो डिलिस्ट हो जाएंगी।
ठीक है, बट it will not going to affect or it has no impact upon all other securities which are listed over that stock market of the same company. उसी कंपनी की बाकी दूसरे लिस्टेड सिक्योरिटीज पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ अगर कंपनी चाहती है बाकी सबको भी हटाना तो हटा सकती है, लेकिन जिनको जैसे अगर केवल इक्विटी को हटाना चाहती है तो बाकी सब पे असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही गाइडलाइन यहां कह रहा है। नेक्स्ट, a company which has a convertible instrument outstanding, it shall not be permitted to delist its equity shares। यहां देखो बहुत ही अच्छा गाइडलाइन है कि सपोज ये कह रहा है कि सपोज किसी कंपनी ने ऐसी डिबेंचर्स इशू कर रखी हैं, वो डिबेंचर्स किस नेचर की है, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं। दैट मीन्स आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड दोस डिबेंचर्स आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। वो डिबेंचर्स क्या होंगे, एक फिक्स पीरियड के बाद, सपोज 10 साल के बाद, 10 साल की अगर मैच्योरिटी है तो मान लिया जाए कि 10 साल के बाद वह किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो डिबेंचर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में। तो गाइडलाइन ये कह रहा है कि अगर किसी कंपनी के ऐसे सिक्योरिटीज या ऐसे डिबेंचर्स स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, दैट मींस दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटीज, देन दोज इक्विटीज कांट बी डिलिस्टेड। या वैसे जो सिक्योरिटीज हैं जैसे दोज डेब्ट्स कांट बी डिलिस्टेड फ्रॉम द स्टॉक मार्केट्स, उनको आप डिलिस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्टेबल है। हो सकता है किसी ने पैसा, इन्वेस्टर ने क्या किया हो, पैसा लगाया हो इसी उद्देश्य के साथ कि भैया चलो 10 साल तक तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद मेरा फायदा है, उसके बाद मेरा इक्विटी हो जाएगा अपने आप उस कंपनी का। तो बेसिकली द पर्सन और द इन्वेस्टर must have been invested in the securities keeping that point of view in mind or keeping that benefit in mind. But what about if the company is going to delist those securities before the maturity period? Then basically he has directly affected the interest of the investors. That's why SEBI has clear cut given the guideline that such securities can't be delisted. वैसी सिक्योरिटीज को आप डिलिस्ट नहीं करा सकते। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्लाइड से किसी को कोई डाउट है? इस पर्टिकुलर स्लाइड में कोई ऐसा चीज है जो किसी को ना समझ में आ रहा हो? चलो तो फाइनल स्लाइड रिगार्डिंग कंपल्सरी डिलिस्टिंग ऑफ कंपनीज। एक को तो हम लोग देख लिए, ये सारे के सारे स्लाइड्स जो अब तक हम लोग देखे थे दे वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद वॉलंटरी डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, है ना, वॉलंटरी के लिए था। और ये पेमेंट कंसिडरेशन तो ये दोनों पे लागू होगा, वॉलंटरी और कंपल्सरी, प्लस डिलिस्टिंग ऑफ वन और ऑल सिक्योरिटी भी कंपल्सरी और वॉलंटरी दोनों पे लागू हो रहा है। बट व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद कंपल्सरी डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इसको देख लिया जाए। नाउ द स्टॉक एक्सचेंज में डिलिस्ट companies which have been suspended for a minimum period of 6 months for non-compliance of the listing agreement। तो पहला कंडीशन क्या है, ये सेबी ने गाइडलाइंस दे रखा है या स्टॉक मार्केट्स को पावर दे रखा है, स्टॉक एक्सचेंजेस को पावर दे रखा है कि सपोज अ कंपनी इज सपोज अ कंपनी हैज बीन ग्रांटेड सस्पेंशन नोटिस फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब किसी एक कंपनी को सस्पेंड किया गया है कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए। ठीक है, एक बार में 6 महीनों के लिए, या मान लो 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में। ठीक है, मान लो कोई गलती किया उसको 1 महीने का सस्पेंशन दिया गया, फिर कुछ गलती किया फिर 1 महीने का सस्पेंशन दिया गया। तो ऐसे जो भी सस्पेंशन के पीरियड है वो एक्यूमुलेट करके 6 महीने हो जाए। ठीक है, क्यों उनको सस्पेंड किया जा रहा है? फॉर नॉन कंप्लायंस विथ लिस्टिंग एग्रीमेंट। दैट मींस द कंपनी हैज कमिटेड मिस्टेक, द कंपनी हैज basically made non-compliance of the listing norms or it has violated certain norms which were prescribed by SEBI। अगर ऐसा कोई कंपनी है जो सेबी के प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स को नहीं मानता है तो उसके ऊपर सस्पेंशन लग सकता है या उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है, या लिस्टिंग एग्रीमेंट की नॉन कंप्लायंस कोई कर रहा है तो उसके ऊपर भी कुछ सस्पेंशन लग सकता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट कहता है कि वो सस्पेंशन पीरियड अगर 6 महीने का हो जाता है देन द
stock exchange has been given power by SEBI that it can compulsory delist the securities of those kind of companies. वैसी कंपनियां जिनको 6 महीने का मिनिमम पीरियड ऑफ 6 महीने, मतलब कम से कम 6 महीने का सस्पेंशन दिया जा चुका है, उसको अगर स्टॉक मार्केट चाहे तो कंपलसरी डिलिस्ट कर दे। ठीक है, उसमें ना कंपनी कुछ कर सकती है, ना उसके इन्वेस्टर्स कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि भाई इन्वेस्टर्स के पास तो पहले ही मौका था निकलने का। 6 महीने से वो नॉन कंप्लायंस का वो कर रही है, लगातार गलती कर रही है, तो वैसी कंपनियों में इन्वेस्टर पैसा क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, तो आपके पास तो पहले ही मौका था, निकल जाना चाहिए था। तो ये इन्वेस्टर्स को क्लियर कट बता दिया गया है कि भैया देख लो, 6 महीने या उससे ज्यादा का अगर किसी के ऊपर सस्पेंशन का चार्ज लग चुका है, तो वैसी कंपनियों को अगर स्टॉक मार्केट चाहे तो बिल्कुल अपने यहां से डिलिस्ट कर सकती है, कंपलसरी डिलिस्ट कर सकती है, यानी वैसी कंपनियों को अपने स्टॉक मार्केट से हटा देगी कि हमारे यहाँ आपकी ट्रेडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये पहला गाइडलाइन है। दूसरा, where the securities of the company are delisted by the stock exchange, the promoter of the company shall be liable to compensate the securities holders of the company. अगर ऐसी कंपनियां हैं जिनको कंपलसरी डिलिस्ट कर दिया गया है, मान लो किसी स्टॉक मार्केट ने देखा कि कंपनी के ऊपर 6 महीने से ज्यादा का सस्पेंशन पीरियड हो चुका है, और स्टॉक मार्केट चाहती है कि नहीं, अब इस कंपनी को हम लोग, इसकी इस सिक्योरिटी को हम लोग ट्रेड नहीं कराएंगे, तो उसको वो डिलिस्ट कर देगी। पर फिर भी आखिर उन इन्वेस्टर्स का, मान लो कुछ इन्वेस्टर्स नहीं निकल पाए, तो उनका क्या दोष है? उसके लिए सेबी ने क्या गाइडलाइन दी है कि इट इज कंपलसरी फॉर द प्रोमोटर्स ऑफ दोज कंपनीज टू पे टू द इन्वेस्टर्स। वैसी कंपनी के सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, वो उनको कौन देगा? प्रोमोटर्स देंगे। कौन से प्रोमोटर? उस कंपनी के प्रोमोटर देंगे। जिस कंपनी को डिलिस्ट किया गया है उसके प्रोमोटर ही सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर्स को देंगे। ठीक है, सो these are basically two conditions, or you can say there is only one condition of compulsory delisting of securities, and that is if any company has been suspended for a minimum period of 6 months। 6 महीने तक अगर किसी का सस्पेंशन हो चुका है तो उसको कंपलसरी डिलिस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है ना कि किसी को 6 महीने का सस्पेंशन क्यों मिलेगा? अरे बहुत बड़ा कोई नॉन कंप्लायंस करता है तो उसको 15 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। तो 6 महीना मतलब 15-15 दिन कितने बार? 12 बार लगभग किया होगा, तब जाके ना 6 महीने का हुआ होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये भी बहुत बहुत ज्यादा उनको सहूलियत दी गई है कि 6 महीने की गलती या सस्पेंशन का उनको चांस दिया गया है, उसके बाद ही कंपलसरी डिलिस्टिंग के लिए कहा जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। That means we have already discussed regarding compulsory delisting of securities and voluntary delisting of securities। दोनों को हम लोगों ने देख लिया, and how the payments of consideration are going to be made, plus whether delisting of one or all securities can be done or not। ये सारा का सारा चीज हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसमें किसी को और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ ले। किसी को किसी पॉइंट में डाउट है तो मुझसे पूछ ले।